Hello student, good morning. Today I will start again some numerical on first order, zero order and half order. And I have sent you on the WhatsApp group new syllabus. And you will see that from the chemical kinetics some portions are deleted. That are the temperature dependence, rate of reaction and collision theory. These are the two last topic. Okay, thus we have to learn up to the first order reaction and half life. बच्चों, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सीबीएसई के थ्रू आए हुए नए सिलेबस को भेज दिया है, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में से कुछ पोर्शन उड़ा दिए गए हैं। उसमें से जो हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और एक है कोलिजन थ्योरी। इन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब हमारा इस तरह से एक तरह से चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें न्यूमेरिकल देखना है। इसमें से हमने कुछ न्यूमेरिकल बता दिए हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह के न्यूमेरिकल्स जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं, बहुत इजी है। कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स P with the K 2.0 into 10 to the power minus 2 per second. Calculate the concentration of remaining after 100 seconds if the initial concentration of A is 1 mole per liter. कहने का मतलब है एक रिएक्शन है जिसमें A से P बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, जिसके लिए K की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और कैलकुलेट करना है हमें कंसंट्रेशन रिमेनिंग। ठीक है, 100 सेकेंड के बाद, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दिया हुआ है 1.0 मोल। ओके, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, वी विल राइट गिवन। क्या गिवन है? ठीक है, गिवन के इज गिवन 2.0 into 10 to the power minus 2 and R naught, yeah, you can say initial concentration of A is given, so you can write A naught 1.0 mole per liter. Okay, and what is the final concentration will be of A? It is asked. Okay, it is asked now, and time is given. What is time? T is given 100 seconds. Okay, and you know the formula. K is equal to 2.303 upon T log A naught upon A. Okay, where A is the remaining concentration and A naught is the initial concentration. तो बच्चों हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया, K दिया हुआ था, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ था, और यहाँ पे A हमें निकालना है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जबकि टाइम दिया हुआ था, और ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब ये एक नए टाइप का इक्वेशन है जिसमें हमें कंसंट्रेशन निकालना है। अभी तक हमने या तो K निकाला या तो T निकाला है। अब यहाँ पे हम क्या निकालने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A। तो सिंपली इस फार्मूले में पहला काम करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हमें जो नंबर मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप वाइज मिलते हैं, हर स्टेप पे नंबर मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ एक फार्मूला लिख दिया तो उस फार्मूले पे भी हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब इस मार्क्स यहाँ मिलने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम ऊपर वैल्यू लिखेंगे इसको।
Now see, k is given. K is 2.0 into 10 to power minus 2 and 2.303 upon 100 log value of A is given 1 upon 1 mole upon A. Okay. First of all, you have to solve this. You will get log 1 upon A equal to 2.0 into 10 to power minus 2 into 100 upon 2.303. Okay. Note down this. Now we can write this log 1 minus log A. Okay. Value of this one is 0. Okay. Then we have this 2.0 into 10 to power minus 2 into 100 upon 2.303. Now you can write here, this one is 2, it will cancel. Okay, 2 upon 2.303. This is the minus log A. After solving, we will get now we have to take anti-log. A is equal to anti-log 2 by 2.303. Now you will get answer 0.135 mole per liter. This is the answer. Okay. Once again you see, here is the value of K, here is the time value, here is log value of A naught, here is A. Now log 1 upon A is equal to this much, and we know that log A upon B is equal to log A minus log B. Okay. Therefore, this one is here is minus. Okay. Then concentration of this much. Here value will be also here minus. Then your answer is this. Okay. I hope you have solved this. Now we will come to next question. अब ये समझ लिया होगा, हमने केवल वैल्यू रखा है, वैल्यू रख करके कैलकुलेट किया है, और ये लॉग के फॉर्म में अगर हमारा कोई आ रहा है, इसको हम एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे। एंटी लॉग देखने का तरीका सेम वही है, बस थोड़ा सा अपोजिट है लॉग के, सारा तरीका वही है। नाउ आई विल erase it. Next question. Next question is from the graph. Next question is from the graph. अब एक हम ग्राफ वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि ग्राफ दिया रहेगा और उस ग्राफ को देख करके ही सारी वैल्यू बतानी है, और ये भी बहुत इजी होता है, ठीक है।
तो यहां से हम लोग रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट A gives product P, okay, is represented by represented by, this is the graph, okay, graph is, here is the concentration A, here is time, okay, and this one is the graph, here is initial concentration, okay. Now what we have to predict first the order of reaction. In this case, the order of reaction, in this case, second is the, what does the slope represent? What does the slope represent? Slope of graph represent, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, हमें बस इस ग्राफ को देख करके पता करना है, ठीक है। तो पहले तो यहां से हमें क्या पता लगता है, इसका इस तरह का जो ग्राफ होता है किस ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हम एक जगह और भी देखते हैं। हम लोग जब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर में पढ़ रहे थे, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है कि में ग्राफ हम लोग देखे थे। तो अगर हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ खींचते हैं, तो जो जीरो ऑर्डर के लिए होता है वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में होता है, ठीक है। और जो हम लोग उसके लिए खींचते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वहाँ पे जो ग्राफ होता है वो लॉग के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है ये डायरेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम दिया हुआ है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, हमें बस सारा चीज इसी ग्राफ से पता करना है। क्वेश्चन नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। Now see the answer. Once again I will make graph here to solve the question. Here is time, here is concentration, and here is initial concentration, okay, and this one is the slope, okay. So first answer is graph represents slope, represents zero order, and second slope. To see the slope we have to see the first equation. What? Rate dA upon dt is equal to K, concentration A, okay. Here is first order, then we know that
In case of zero order reaction, it doesn't depend upon the concentration of reactant, so here will be 0, therefore it will be K. Then dA upon dt is equal to K. Okay. Now here is negative value, therefore slope will be minus K. Okay, slope will be minus K. तो यहाँ से हमने ये देख लिया, ये रेट हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया। अभी हमारा नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमारा ये स्लोप हो गया, यहाँ पे स्लोप माइनस के। तो हमें स्लोप निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद तब हम उसकी वैल्यू पता करेंगे। तो एक बार और से जान लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है अपने आप ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे हम log A ले लेते या ln A ले लेते, तब उस कंडीशन में ln A लेने पर जो है कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। अगर केवल यहीं पे ln A लिखा होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाता और स्लोप चेंज हो जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में क्या हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन टू टाइम हम खींचेंगे ग्राफ, तो इस कंडीशन में ये हमारा तो जीरो ऑर्डर को बता रहा है, अगर यहाँ लॉग होता तो फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे हमारा ये स्लोप को बता रहा है, ठीक है। ये हमारा स्लोप क्या है, माइनस के है, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया। Now we will see next question. I hope all of you understand. समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, so that for a first order reaction, for a first order reaction, time required for half change of the change of the change. Half the change means half life. Okay, is independent of initial concentration. Is independent of initial concentration. ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये लिखने का तरीका बदल गया है, ठीक है। लिखने का क्या है, तरीका बदल गया, जबकि हम लोग हाफ लाइफ का जो प्रूफ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो रिएक्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम हाफ लाइफ का रिएक्शन लिखते हैं, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोगों ने प्रूफ किया, तो सेम वही चीज़ है, इसमें कोई चीज़ वो नहीं है जैसे लग रहा है कि कोई नया क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्या है, ये डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर को का डेरिवेशन है हाफ लाइफ का, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। बात समझ आ गई। अब एक बार फिर से देखते हैं हम इसे। क्वेश्चन ये कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर हाफ द चेंज, हाफ द चेंज का मतलब आधा कंसंट्रेशन, केवल शब्दों का फेर है यहाँ पे, क्या है, हाफ द चेंज। हाफ द चेंज का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का
हाफ होने में जो है कि कितना समय लगेगा, ठीक है, ये वो जो समय है वो कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन का क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब जो हम लोग हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए जो प्रोसेस वहां करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हाफ चेंज का मतलब हो गया टी इक्वल टू टी हाफ, टी हाफ चेंज होने वाला है। अब ये हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन, जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, हाफ हो गया, ठीक है। इसे हम यहीं पे लिख देते हैं अंदर ही, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा। आई बात सुनिए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ सारा कुछ, सारे हिंट क्वेश्चन में दिए रहते हैं, कहीं अलग से सोचना नहीं होता है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लिख लेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहां से हमारा k, या हम इस टाइम को इधर लेते आते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं t 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन a। हमने एक बार तो ऐसे लिख दिया। अब हमें ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देनी है। रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे टी की जगह पे टी हाफ रख देंगे, टी हाफ। ओके, अब यहाँ से 2.303 अपॉन के रहने देंगे, लॉग कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2 रख देंगे। ए की जगह पे क्या रख देंगे, ए बाई 2 रख देंगे। अब ये क्या होगा, ये तो कट जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 2। और हम लोग लॉग 2 की वैल्यू क्या जानते हैं, लॉग 2 इक्वल टू 0.3010, ठीक है। सेम वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। हमें बस थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया जाता है अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ करके, बहुत सही समय पे ये चीजें जैसे लगता है कि गायब हो जाती है। अब वो सब कुछ वही होता है, हम लोग को बस केवल लगता है ऐसा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0.310 अपॉन के, तो इस के और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। ये वैल्यू आ गई वहीं पे। यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई टर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा T/2 इक्वल टू कितना आ गया, 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इस इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन टर्म है, कहीं पे ए या ए नॉट लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा मतलब ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन से इसका लेना कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें क्या पता लग गया कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, क्लियर है, ये समझ आ गई बात, समझ आई। अब तो बोलना जब, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब इसी सेम क्वेश्चन को देखो, अब एक क्वेश्चन हमने जैसे क्वेश्चन पूछ दिया पहले कि डिराइव द फार्मूला फॉर हाफ लाइफ पीरियड
हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक तो जैसे हमने जनरली डेरिवेशन करते हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, दूसरी तरह से उसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। लैंग्वेज चेंज का मतलब दूसरी भाषा में नहीं लिखा रहता है, कहने का मतलब उसका तरीका चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि प्रूफ कर दीजिए, शो करना है, हमें दिखाना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि दूसरी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसको भी केवल क्वेश्चन लिखेंगे, करना सारा कुछ इसी तरह से है, सब कुछ इसी तरह से करना है, ठीक है। सब कुछ क्या करना है? इसी तरह से। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस उस क्वेश्चन को हम लिख देंगे और आप लोग को जो है कि सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि ड्राइव द क्वेश्चन, डिराइव द जनरल फॉर्म of the expression, general form of expression for the half life of the first order reaction, of the first order reaction, ठीक है। सेम वही चीज है, बस इस फॉर्म में सारा काम वही करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखने के बाद हम इसमें जो है कि वैल्यू पुट करेंगे। हाफ लाइफ बोल दिया है तो कंसंट्रेशन हाफ होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन हाफ होना चाहिए। और हमें वहाँ पे देखना है कि टाइम हाफ ले लेंगे, सारा कुछ वही आएगा और कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अब एक क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। फटाफट हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, लिखते रहिए साथ साथ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCOOH is a first order reaction, first order reaction with the rate constant of of 2.4 into 10 to power minus 3 per second at a certain temperature, calculate how long will it take three-fourth of initial quantity of HCOOH to decompose and log 4 is equal to 0.6021. Student,
ये क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ COOH। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो रहा है विद द रेट कांस्टेंट इसका दिया हुआ 2.4 × 10⁻³ एट सर्टेन टेम्परेचर। कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लेगा इट विल टेक टू टेक फॉर द 3/4 इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 क्वांटिटी ये COOH का डिकम्पोज होने में। अब यहाँ पे log 4 की जरूरत पड़ेगी, इसको सॉल्व करिएगा। फिर हम लोग कल एक नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।